Hello students, today we will read about steps in research. Okay, what are the steps under which we have to do the research, that all things we will read. So first let's start with the following steps by which we need to do the research. तो सबसे पहला step है defining research problem. First we need to define the research problem. There are the 7 basic steps under which criteria you need to do the basic research. Whatever research you are doing, that is nothing but the basic research. Okay, so for doing the any PG level research, the basic research method has been followed. So सबसे पहला है उसमें what? Defining the research problem. Second one is review of the literature. Third is to formulate the hypothesis. Next is designing research design, including the sample design. After that, the collection of the data and then the analysis of the test data and the hypothesis and the interpretation. So these are the 7 steps under which we will follow the research. Okay, so steps of the research under these criteria, the 7 basic steps has to be followed for doing the any basic. So let's start one by one. First we will discuss about the selection of the research problem. So what exactly the research problem is and how it has to be selected. The research problem is whatever field or work you need to do, okay, that has to be selected properly. फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट दी प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज पे रिसर्च करने की जरूरत है. आफ्टर दैट यू नीड टू सेलेक्ट दी पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि हाँ आपने देख लिया इस चीज के लिए हमको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और दिस थिंग हैज बीन सेड इन अवर क्लासिक एंड वी नीड टू फाउंड द सॉल्यूशन. तो फॉर फाइंडिंग दी एनी सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चंस, ओके, you need to do the research and that is your research problem. And how to select a research, how to select a research problem or research question. The researcher, whatever you will select the research question, it should be simple. कैसा होना चाहिए, जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. हमारे क्लासिक्स में बहुत सारे चीजें बोले गए जिसमें से हम रिसर्च कर सकते हैं, बट वॉट एवर यू विल सेलेक्ट दैट शुड बी वेरी सिंपल टॉपिक. It should not be complicated. It should be attractive. Means it will draw attention towards the reader. It should be concise and it should be very clear and it will completely focus or the reflect the scope of your work and it will be short. Okay. तो सबसे पहले हमें research problem select करने के लिए these basic criteria you need to focus on. After that, what you need to do? Selecting a research problem. The problem has to be, जो भी आपने select किया है वो किसके अंतर्गत आना चाहिए, 6 क्राइटेरिया के अंदर वो क्या होता है डिस्कस कर सकते हैं. पहला है जो भी आप प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी आप रिसर्च टॉपिक फाइंड कर रहे हैं वो रिसर्च टॉपिक कैसा होना चाहिए. इट शुड बी इंटरेस्टिंग. ऐसे नहीं है कि आप कोई भी वेग टॉपिक ले रहे हैं. इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग and the first priority should be given to the research problem. Why? Because the research problem, it will tell or advise about the researcher interest. आपके इंटरेस्ट से होना चाहिए, आपको कैसा टॉपिक लेना है, क्या वो रियली जेन्युइन है, ऐसा होना चाहिए. अर्जेंसी, अर्जेंसी मीन्स कि आप जो भी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके, तो वो क्या होना चाहिए, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, जैसे कि अभी कोरोना का इफेक्ट है तो उस पर अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो इट शुड हैव द अर्जेंसी कि इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप उसके ऊपर तुरंत वर्क कर सको. एंड ऑल्सो दिस क्राइटेरिया इज रिलेटेड टू द टाइप एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन कि कैसा रिसर्च आप करना चाहते हैं और कितना पॉपुलेशन का साइज है, मतलब कितने लोग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो व्हाट आई सेड, इट्स स्कोप एंड इफेक्ट कि उसका अच्छा स्कोप होना चाहिए कि आपके डे टू डे लाइफ में वो प्रॉब्लम अराइज होती रहे, उस पर आपको रिसर्च करना है. नेक्स्ट इज यूजफुलनेस. इट शुड बी यूजफुल कि आपको कोई भी वेग उठा के नहीं ले लेना है. द वॉट एवर यू आर सेलेक्टिंग फॉर द रिसर्च क्वेश्चन or research problem, it should be very useful and it will contribute, it should contribute to the your society or it should contribute to your science. Next is okay. Ability. The researcher own ability, educational and professional background and uniqueness कि कहीं भी duplication नहीं होना चाहिए. It should be very unique and practical limitation and feasible. It should be time, cost, access to the resource. आपको ऐसा रिसर्च वर्क सेलेक्ट नहीं करना है कि जो बहुत ज्यादा लंबा हो, कोहॉर्ट स्टडी की तरह. एक छोटा रिसर्च वर्क लेकर उसको क्या करना है, रिसर्च करके देखना है एंड कि वेदर इट इज रियली यूजफुल और नॉट. और रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करते समय यू कैन अप्लाई दी फाइनल क्राइटेरिया ऑल्सो. फाइनल क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड बी फीजेबल.
जो भी आप ले रहे हैं वो बहुत फीजेबल होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड इज आई फॉर इंटरेस्टिंग, जो भी है इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एंड फॉर नोवल, नोवल मीन्स इट शुड बी न्यू, आप किसी का कोई भी स्टडी को कॉपी नहीं करना है। इट शुड बी एथिकली प्रूवन, एथिक्स के अंदर आना चाहिए, आप कोई भी अनएथिकल रिसर्च नहीं कर सकते। ओके, इट शुड बी रिनोवेटिव, मीन ये अच्छा और रिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट इज लिटरेचर रिव्यू। आफ्टर सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, आपने क्या किया, वंस यू हैव सेलेक्टेड द रिसर्च प्रॉब्लम, आपने रिसर्च सेलेक्ट कर लिया कि सपोज यू वांट टू डू रिसर्च ऑन सब टॉपिक, ओके सम टॉपिक यू वांट टू डू रिसर्च, कि आपको चंद्रप्रभावती ले रहे हैं उसका यूज करना है आपको, इट विल एक्ट ऑन द मूत्रकृच, सपोज यू वांट टू डू these topic in a research work। okay, so what you need to do, first you need to do the literature review। what is the meaning of the literature review? पहले आपको क्या करना है कि जहां भी बुक में वॉट एवर इट इज गिवन अबाउट दी पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन बुक में हो गया, डिफरेंट जो भी आर्टिकल्स में हो गया, जर्नल्स में हो गया, वो सब से आपको इसके बारे में क्या करना है, कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन। ओके, तो व्हाई डू वी नीड टू डू ऑल दिस रिसर्च और लिटरेचर रिव्यू? बिकॉज टू नो मोर अबाउट द प्रॉब्लम, कि जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं आपको और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, यू विल गेट मोर प्रॉब्लम और मोर क्वेश्चन विल अराइज। ओके, टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, व्हाई यू नीड टू डू प्रॉपर रिसर्च रिव्यू? टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, ताकि आप जो नया रिसर्च ले रहे हैं वो किसी और ने किया तो नहीं है, इसलिए ये डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज टू लर्न द गैप इन द एरिया ऑफ द स्टडी, whatever the gap is there in the study, you need to fulfill the gap। okay, and to provide a very evidence based medicine to the ayurveda, to learn various methods and to focus the challenges। and why do we review, or what we will review? We will review from the various sources। first we will review from the library, electronic research engines or internet or any grace literature। आपके आयुर्वेद में जितने भी संहिता है, वेद है, उपवेद है, जो भी जितने भी सारे आर्टिकल्स, जर्नल, पबमेड, मेडलार्स, गूगल स्कॉलर, फ्रॉम ऑल सर्च सोर्सेस you need to do a literature review properly। if you want to do any study, first you need to do literature review। okay, if you have selected any research problem, to provide a support to your research work, you need to do a very strong literature review, right? next we how to formulate the hypothesis। अब आपने क्या किया, रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया, लिटरेचर रिव्यू सेलेक्ट कर लिया। ओके, लिटरेचर रिव्यू आपने पूरा सर्च कर लिया कि ये कहीं नहीं किया हुआ है, नोवेल है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू है, एवरीथिंग यू हैव डन। देन नेक्स्ट स्टेप इज कि उसको हाइपोथेसिस में कैसे फॉर्मुलेट करना है। क्या आप ऐसे ही लिख देंगे कि चंद्रप्रभावती इट विल एक्ट ऑन अ चंद्रप्रभावती इन मूत्रकृच? यू शुड नॉट राइट लाइक दिस, you have to formulate both the factors। okay, Chandraprabhavati also one factor, and your whatever the medicine you are this disease you are selecting, this is also two factors। okay, these two factors and your problem, all these things you have to formulate into a one hypothesis। Formulate how, what is its role? There are two types of the hypothesis, one is research hypothesis and one is null hypothesis। what exactly the hypothesis is? हाइपोथेसिस है कि जो आप वर्क करना चाहते हैं, यू हैव टू फॉर्मुलेट इन वन रिसर्च क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू गिव योर रिसर्च क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रप्रभावती इन मूत्रकृच, तो व्हाट विल बी योर रिसर्च क्वेश्चन? चंद्रप्रभावती, इफेक्ट ऑफ चंद्रप्रभावती ऑन मूत्रकृच, a research study, that is your research hypothesis। and what is your null hypothesis? Chandraprabhavati will not act on the मूत्रकृच, that is your null hypothesis। okay, so you need to prove this hypothesis at last, इसीलिए this is our hypothesis, ये आपका basic hypothesis है, you need to prove this hypothesis। okay, so you need the selection of the or making of the hypothesis, it's very important। okay, so formulation of the hypothesis, whatever the hypothesis you will do, you have not to do any haphazardous guesses, you need to do the depth knowledge of the particular thing, and then only you need to formulate any hypothesis। okay, whatever construction you are doing, hypothesis by exact observation of the available data and suggestions from the expert, you need to take the suggestions from the experts also। a useful hypothesis is a testable statement which may be included in the production।
Okay, so you should not give anything logically. Whatever thing you are doing for the research work, you need to formulate in a proper form. थर्ड हो गया आपका हाइपोथेसिस. उसके बाद हाइपोथेसिस के साथ आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी उसका डिस्क्राइब करना है कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे आपने बना लिया कोई भी एक स्टडी के लिए, तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव देना है. यू हैव टू प्रूव योर एम, व्हाट इज योर गोल टू अचीव. ओके, it explains what the researcher expects to achieve. Okay, what the researcher want to do, you need to specifically explain. For example, जैसे आप चंद्र प्रभावती मूत्रकृच्छ कर रहे हो, so you need to here make the objective. Your first objective will be the pharmaceutical preparation of the Chandra Prabhavati. What you will do, you will prepare the Chandra Prabhavati, so pharmaceutical preparation of the Chandra Prabhavati. And the second objective will be effect or the clinical study of the Chandra Prabhavati. Okay, clinical study. So clinical study means it will be seen in case of the human beings. Okay, so like these, the assessment criteria, how you need to assess, you have to specify properly as a general objective. Okay, so what is a specific objective? The statement of the problem, किसी भी problem का statement. Okay, to compare any comparatively study, if you are giving any statement, that is called as specific objective. So how the objective should be? Objective should be properly focused, in a order, in a realistic form, operational and measurable. It should be for selecting the any short objective or specific objective, you need to follow a particular smart criteria. That is what? Specific, measurable, achievable, realistic and time bounding. Okay, these are criteria you have to follow. You should be very specific about the subject and it should be measurable, like either it is a comparative study or it is not any other study. It should be achievable, means कि आप जो भी बोल रहे हैं वो अचीव करने के लिए होना चाहिए. And it should be realistic and time bounded. So everything should be look out into the objective. Next we will move for the research design. Research design का मतलब क्या होता है कि आप जैसे सपोज कोई भी वर्क करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले उसका एक प्रॉपर लेआउट तैयार करते हैं, राइट. इन द सेम वे, if you are doing any research work, you should do first the research design. आपको क्या तैयार करना है? research design, a design or a blueprint कि how you are going to conduct a research. आप कैसे research conduct करेंगे, you need to do about that. Okay, तो पहले क्या करेंगे, आपको उसके लिए कैसे स्टडी में अप्रोच करना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे आपको सैंपल साइज सेलेक्ट करना है, क्या टेक्निक फॉलो करना है सैंपल साइज के लिए, क्या क्या टूल्स है, कैसे मेथड से डेटा कलेक्ट करना है. These and all things come under the research design. You need to explain everything कि how the research work you are going to carry out. Next है कि research design में medical research design के लिए बहुत सारे वर्क है, जैसे कि एक experimental study होता है, observational study होता है और इसमें explanatory study होता है, diagnostic study होता है. तो mainly इसमें experimental study में what we will do the experiments. And observational study, it is a type of the survey. Here only what we will do कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे. एक्सप्लेनेटरी स्टडी इट्स लाइक अ यू नीड टू ओनली एक्सप्लेन अबाउट एंड यू नीड टू डू सर्वे एंड एक्सप्लेन. ओके, तो दीज एंड ऑल क्राइटेरिया मेडिकल रिसर्च में कुछ स्टडीज होते हैं जिसके आधार पे आपको डिजाइन तैयार करना. उसके बाद सैंपल. सैंपल के लिए बोलते हैं, सैंपल किसको बोलते हैं कि आपने क्या किया, एक बार रिसर्च डिजाइन तैयार करा लिया कि आपको कौन सा डिजाइन फॉलो करना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना है या ऑब्जर्वेशनल स्टडी करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, सैंपल डिजाइन तैयार करना है. सैंपल डिजाइन मतलब होता है कि आपका पॉपुलेशन में से जो पेशेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर योर स्टडी ग्रुप. ओके, whatever the patient or whatever the population you are selecting for the study group, that is called as sample design and a researcher need to choose that. So how you need to choose that, you need to first define the population देखना है, उसमें से आपके सैंपल से कितने लोग मेजरेबल में, कितने लोग आपके स्टडी के लिए स्टडी क्राइटेरिया के इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहे हैं, यू नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम दैट. ओके, उसके बाद आपको सैंपल साइज देखना है, बजट देखना है एंड सैंपल का प्रोसीजर करना है. तो सैंपलिंग करने के लिए दो तरह का मेथड फॉलो करते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. उसके बाद है डेटा कलेक्शन. अब आपने सैंपलिंग कर लिया, अब आपको क्या करना है, आफ्टर डूइंग द सैंपलिंग you need to collect the data of the specific thing.
तो डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेटा क्या है, जो भी आप सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, या उसके बारे में आपको कंप्लीट आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, उसके बाद आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो ये डेटा आप प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्स आर दोस व्हिच आर कलेक्टेड फ्रेश एट द फर्स्ट टाइम, जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेंगे डायरेक्टली, आप जैसे पेशेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हिस्ट्री ले रहे हैं, दैट इज योर प्राइमरी डेटा। And secondary data is like if anyone have collected, you are using the someone else data. Okay, तो आप करना है। उसके बाद डेटा कलेक्ट होने के बाद what you need to do, you need to analyze that data, कि आपको उसको एनालाइज करना है कि आपने क्या किया, इंटरवेंशन दे दिया, अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, सैंपल साइज हो गया, इंटरवेंशन दे दिया, उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट कर लिया इंटरवेंशन देके, आपके पास जो भी डेटा बचा आप उसको एनालाइज करेंगे, कितने फॉर्म में, टू फॉर्म में, एक है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सेकंड इज इन्फरेंशियल एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मींस you need to describe the thing, okay, and inferential analysis मतलब what you will do, you have to inform। तो why it is required कि आपको to convert the data into a usable information, एक information में use करने के लिए, to remove the effect of confounding variables, to test your hypothesis, आपने जो hypothesis prove की है उसको test करने के लिए। उसके बाद उस डेटा को आप क्या करेंगे, at the last point you need to interpret the data। डेटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आपने स्टार्ट में ऑलरेडी पढ़ा है कि आइदर इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप डेटा को इंटरप्रेट टेबुलेशन फॉर्म में कर सकते हैं, पाई डायग्राम में कर सकते हैं, या पाई चार्ट में कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लेकर आपको क्या करना है, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है, प्रॉपर डेटा करने के बाद आपको लास्ट में उसको इवेलुएट करना है और असेस करना है कि जो भी आपने प्रोसीजर आपका हाइपोथेसिस के लिए किया है, कि सेटअप करना है कि आपने नल हाइपोथेसिस को प्रूव किया है या नहीं किया है, या आपने रिसर्च हाइपोथेसिस को प्रूव किया है या नहीं किया है। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, एनी नेसेसरी अजम्पशन और रिटर्न नल एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, तो आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट से, पी वैल्यू से, कोई भी चीज से आपका कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना रिसर्च हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस को आप प्रूव करना है। तो ये था बेसिक स्टेप है कि आपको रिसर्च कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करने के लिए कोई भी टॉपिक के लिए सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है, फिर इंटरवेंशन देना है आपको, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन करना है, और सैंपल डिजाइन के बाद इंटरवेंशन करना है। ठीक है, इंटरवेंशन करने के बाद क्या करना है, असेसमेंट करना है। असेसमेंट के बाद क्या करना है, लास्टली आपको डेटा जो मिलेगा उस डेटा को एनालाइज करना है और फाइनली इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रिटेशन में आपका फाइनल कंक्लूजन आएगा। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बट ये ब्रीफ था किसके बारे में, steps of the research. This is the basic step under which you need to follow your research work. Okay, thank you. If any query, you ask me.